कहते हैं रंगमंच की अपनी एक दुनिया और अपने ही दर्शक हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप सभी दर्शकों का AK सिन्हा एकांकी के भव्य समारोह में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस शुभ संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हैं श्री हरप्रीत सिंह सर IAS महानिदेशक, श्रीमती अमृता कौर मैम, श्री बेनूर महेश दत्त एका सर IAS अतिरिक्त महानिदेशक, श्रीमती अनीता राजेंद्र मैम IAS संयुक्त महानिदेशक, डॉक्टर K तिरुपतैया सर IFS रिटायर्ड मुख्य सलाहकार प्रशिक्षण और डॉक्टर K उषा रानी मैम वरिष्ठ संकाय, और साथ ही में हमारे नन्हे मेहमान जो इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए देवनार फाउंडेशन से हमारे बीच शामिल हुए हैं। तो आइए जोरदार तालियों से इन बच्चों का मंच पर स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं शारोन को, जो देवनार फाउंडेशन के बारे में हम सबको बताएंगी। शारोन। Good evening, one and all. I'm Sharon from 10th standard. Now I'm going to say a few words about Devnar School for the Blind. I'm very happy to be here with you today. And our school was started in 1992 by Padma Shri Dr. Sai Baba Gaud and Mrs. Gaud, and it has completed 29 years of existence. From 4 students, the strength has increased to 550 now. And all the students are given a free education, boarding and lodging. We have classes from LKG to degree and we follow the state syllabus. Our students, after completing their studies, are getting good jobs as bank officers, engineers, professors, and also many are in government service. Our students are excellent very well in all streams like academics, cultural activities, and we would be happy to know that our boys have played chess and cricket international levels and won many matches abroad. And we have many facilities in our school like printing room, science lab and computer lab. And I thank our chairman sir and correspondent ma'am for giving me a wonderful education in this school. And I thank all the organizers for giving me this wonderful opportunity to speak a few words. Thank you so much. इस रंगमंच पर एकांकी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। I'd now like to invite Shravya and Arasavalli of Devnar Foundation for a devotional song. Raravenu Gopala Rajita Sakuna Jayashila, Raravenu Gopala Rajita Sakuna Jayashila, Sara Saksha Niramini Maru Bari Korvalera Sara Saksha Niramini Maru Bari Korvalera Raravenu Gopala Rajita Sakuna Jayashila, Nanda Gopala Neenindu Bojala Neevindurala Sadamala Madito Mudamala Rakana Keduruga Gadiyara Raravenu Gopala Rajita Sadguna Jayashila, Marulu Garavamunanin Pilachina Paluka Waluga Kura Karivarada Mari Marina Adaramugro Narakanikarmugara Ravenu Gopala Rajita Satkuna Jayashila, Nagadara Murahara Vavahara Vera Lalananui Sogasini Chekora Kori Kalimpanda Denda Muni Enda Cherenuni Chenta Maruakura Karamulache Mari Mari Ninu Sharanani Raravenu Gopala Rajita Sat
రారవేణు గోపాల రాజిత సద్గుణ జయశీల. Thank you. Now again we are going to sing another song, that is Hindola Raga, set to be in Aditalam. Saga madani sa sa ni da ma ga sa sa ni da ma da ni da ma ga ma ga ma da ni sa sa ni ni sa da ni sa ni ni sa ni ni da da ni sa ni ni da da ni ni da ma da 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 ma ma ga sa ma ga ma da 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 ni da da ma ga ma da ni sa ni da ma da ni da ma ga ma da ni sa ma ga sa ni da ni sa ni ni da da ma da ma ga sa ni ni sa ga ma da da ni sa ni da ma da ni da ma ga ma da ni ma ga ma ga sa ni da ni sa ga sa ma ga ma da da ni da ma da ni sa sa ni da ma ga sa ma ga ma da ni sa ni da ma da ni da ma ga ma da ni sa ga sa ma ga sa ni sa ni da ni sa ga sa ni da ni sa ni ni da ma ga ma da ni da ni da ma ga sa ni ma ga ma ni da ni sa ga sa ma ga sa ni sa ni da ma da ni da ma ga ma da ni sa ni sa ga sa ni da ni da ni sa ni da ma da ni sa ni da ma da ma ga sa ni sa ma ga ma ni da ni sa ni da ma da ni sa ni da ma da ni da ma ga ma da ni da ni sa ni da ki na jam da ni sa ni da ta jam ta ni ta da ni sa ta kundari da ma ga ta ki ta sa ni sa da na ta ni da ni ta ri ta ga sa ni ja na ta ni da ma ta di gi na ta sa ni da ma da ni da ma ga ma da ni sa. Thank you. Distinct from other plays with several acts, one-act play has only one act but may consist of several scenes. The origin of one-act play may be traced to the very beginning of drama. Cyclops, a play on forest god, is an early example. One-act play were written and staged throughout 18th and 19th centuries as the curtain raisers or the afterpieces. The one-act play competition forms an integral part of the special foundation course, so much so that this offers the first-time experience for drama performance for many of us present here. There are 4 awards awaiting the competitors, namely the Best Director, the Best Play, the Best Script and Best Actor and Actress awards. So the first play of today's evening is The Dream Sellers by Kanika and Ilma. The play touches upon the aspirations of the youth in today's India. We may now invite the team Dream Sellers on stage, please.
भारत के बच्चे बच्चे का ख्वाब है ये परीक्षा। कलेक्टर, पुलिस कप्तान, फॉरेन सर्विस में जाना ग्रामीण हिंदुस्तान के हर बालक का ख्वाब होता है। और ऐसा ही एक प्यारा सा मुरादाबादी छात्र श्री जयपाल चौधरी, एमए संस्कृत, एमए इंटरनेशनल रिलेशन, आ गए हैं बाबूजी से वादा करके। बाबूजी कुछ बड़ा करके दिखाना है, शहर में नाम कमाना है और पुलिस कप्तान कलेक्टर बन के दिखाना है। आइए जानते हैं जयपाल चौधरी शाहजहां रोड ढोलपुर हाउस पे प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा देखते हुए। हे भोलेनाथ, आज जे मैं पास हो गया तो पूरे गांव में देसी घी की बूंदी और शक्कर पारे लुटाऊंगा, भगवान पास करा दियो। अरे हटो भाई हटो, हमें भी देखने दो भाई। फेल हो जाओ, देख लो यार। अबे तुम्हारी शक्ल ही खराब है यार, पास ही नहीं हो पा। ये क्या हो गया भाई? कहते हैं बड़ा नाम करे। लल्ला, प्रणाम बाबूजी। क्या हुआ लल्ला, ड्यूटी मिली? बाबूजी फेल। अरे भग बुड़बक। अरे सुट्टा चाचा, हाँ भैया, चाय देना। बिल्कुल अभी देते। चाचा माइल्ड भी दे दो साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाचा चाय, सिगरेट, गुटखा खैनी सबको मेरी तरफ से। अच्छा, अरे ललित भाई ऐसा क्या हो गया? भाई सिलेक्शन हो गया अपना पीटी में। सच में? हाँ। अरे भाई तुम तो फोड़ू ललित निकले। अरे ललित भाई, आपने टॉपिक ही गलत छेड़ दिया है यार। इस साल तो मैंने इतनी पढ़ाई करी थी कि लक्ष्मीकांत, जीसी लियोंग मेरे सपनों में आने लगे हैं। मेरे भी। लेकिन अब यूपीएससी तो ठहरा उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन, सवाल उसने उल्टे ही पूछने हैं। इस साल भी कुछ नहीं हो रहा है। सीसेट का पेपर देखा इस साल का, मन करता क्या क्या एग्जाम दे दूं इससे अच्छा तो। सही में भाई तुम लोग एग्जाम तो दे पा रहे हो यार, मुझे तो लगता है वो भी नहीं है किस्मत में। पिछली साल एग्जाम देने गया तो बोलते हैं सेंटर गलत है, इस साल 9:30 पे पहुंचा तो बोलते हैं एग्जाम 9 बजे से है। यार ये सही से बताते क्यों नहीं है यार एग्जाम के बारे में? यार लिखा तो रहता है एडमिट कार्ड में 9 AM, दिखता नहीं है क्या तू? अरे भैया जी, ये कितने अटेम्प्ट हो गए हैं आपके? अरे तुम कौन भाई, नए हो क्या इधर? जी भैया जी नए हैं। नाम क्या बताया अपना? जयपाल चौधरी, मुरादाबाद से। अच्छा, तो जयपाल चौधरी फ्रॉम मुरादाबाद। नया कबूतर है। तुमको एक बात ध्यान से बता देता हूँ, गार्ड बांध के याद कर लो। कौन सी बात भैया जी? लड़की की उम्र, आदमी की सैलरी और एस्पिरेंट के अटेम्प्ट नहीं पूछा करते इस इलाके में, समझ गए? अरे भाई तुम, अरे आप बताइए इन्हें कुछ। कोचिंग कहाँ से किए थे तुम? हम तो ऑनलाइन वीडियो देखे ना, सैनी वाला क्या वो पन अकेडमी सारे देखे। कोचिंग तो नहीं किया भैया। अरे देखो, बाजीराम से पॉलिटी पढ़ो, जल्दी से चाचा। अरे पिजन आईएएस से इकोनॉमिक्स पढ़ो। अच्छा 2। हाँ, और हैंड राइटिंग की भी तो क्लास लगानी पड़ेगी। हैंड राइटिंग की क्लास कौन लगाता है भैया? अरे भैया मेंस कैसे निकालोगे, अगर समझ ही नहीं आएगा तो नंबर कैसे आएंगे? और फिर देखो हॉबीज की भी क्लास, जैसे बटरफ्लाई वॉचिंग, रेलवे ट्रैक वॉचिंग, ये सब भी करना पड़ेगा। अरे भैया यहाँ प्री नहीं हो रहा है, हॉबीज की क्लास लगा के क्या करेंगे हम? अरे भैया प्री निकाल के क्या करोगे, फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, कोचिंग करो हो जाएगा। अरे भैया जी थैंक यू यार, आज ही ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू जी। टाइम मैनेजमेंट की क्लास भी ले लेना। कौन सी? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, डन सर डन। अब शुरू होती है जयप्रकाश की कोचिंग हॉपिंग। सुबह से लेकर शाम तक एक कोचिंग से दूसरा कोचिंग। सर कुछ तो करा दीजिए। मैं बता रहा हूँ, देखो तुमको सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा। अब कर लेते हैं थोड़ी सेल्फ स्टडी। ये पुतिन और बाइडेन का सास बहुत चल रहा है जो सब। इस तरह भैया पूरे साल की कोचिंग हॉपिंग, देखे ढेर सारे वीडियो। अब देखते हैं क्या बनेगा इनका नतीजे के दिन। आ गए जयपाल चौधरी ढोलपुर हाउस रिजल्ट देखने। भाई 4 कोचिंग के पैसे खर्च करे हैं, इस बार तो कुछ होगा क्या नहीं? अरे इस बार तो अच्छा मेरा पेपर गया है, देखो। अरे आगे इस बार हो गया।
अरे ये कोचिंग वाले तो सब जी बाबू जी प्रणाम। अरे होता तो कॉल करके बताते, नहीं क्या हो गया। रखिए आप। अरे सुट्टा चाचा 2 कप चाय बनाओ। अबे तुम साला पैसे देते नहीं हो, हर बार फ्री की चाय पीने आ जाते हो। चाचा एक बार पास हो जाने दो, नीली बत्ती में आके सारे पैसे चुकाऊंगा। अरे हट गई नीली बत्ती भैया। अरे यार जब देखो तब पैसे मांगते रहते हैं यार। अरे चाचा माफ करो इनको, आज माफ करो। आज की चाय के पैसे मेरी तरफ से। अरे प्रशांत भाई ऐसा क्या हो गया? अरे मेरा भी प्रीलिम्स निकल गया यार, फॉरेस्ट का भी निकला है। तुम्हारा निकल गया? हाँ। यार तुम तो 24 घंटे हमारे साथ यही पड़े रहते हो सुट्टा पीते हुए। अच्छा अब तुम भी फोटो ललित की तरह मोटिवेशनल वीडियोस डालोगे कि पेशेंस इज द की और इफ यू नेवर ट्राई यू विल नेवर नो, अच्छी बातें करोगे क्या? अरे भाई तुमने फोड़ू ललित की कहानी सुनी? वहाँ एमसीआर में उनका फजीना के साथ झगड़ा हो गया था, यूज ऑफ अनप्रोफेशनल लैंग्वेज। ऐसा भी है? हाँ। अरे यार बट हुआ कैसे यार तुम्हारा? कौन सी कोचिंग ले ली? यार मैं तुम्हारी तरह किताबें पढ़ने वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं गया सीधा यूपीएससी बाबा के पास, उनकी दिव्य दृष्टि के लिए। अरे ये यूपीएससी बाबा कौन है भाई? अरे तुम फिर आ गए, तुमने यूपीएससी बाबा का नाम भी नहीं सुना? नहीं तो। अरे होपलेस हो थोड़े। यूपीएससी बाबा जिसका कोई कुछ नहीं करा पाता, उसका यूपीएससी बाबा कराते हैं। अपने पांडुरंग को जानते हो? अरे चोरमोले। हाँ हाँ चोरमले, अपना भाई। तो फोटो है हमारे रूम पे। 5 बार प्रीलिम्स से फेल हुए, 5 बार। 6ठी बार बाबा के पास गए और सिर्फ आज एमसीआर में सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, एमसीआर में तो हमें भी क्लास करनी है भैया जी। पता होता बता दीजिए कहाँ मिलेंगे ये बाबा। बाबा को पाना इतना आसान नहीं है। धौलपुर हाउस देखा है? अरे वहीं से तो आ रहे हैं मुंह लटका के, क्या बात कर रहे हो? नहीं वहां नहीं जाना था। बाबा सुभाष नगर में रहते हैं, वहां जाके किसी ऑटो वाले से पूछना, वो तुम्हें पहुंचा देगा उनकी गुफा इतने तक। फेमस है क्या? हाँ थैंक यू आज ही जाता हूँ। थैंक यू भैया जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दिव्य दृष्टि की तलाश में जयपाल चौधरी यूपीएससी बाबा की गुफा की तलाश में। बने हम हीरो। बाबा बाबा आपकी जय हो बाबा। बाबा पास करा दो बाबा, एस्पिरेंट हूँ बाबा। एस्पिरेंट हूँ बाबा। लग रहे हो शक्ल से। बैठो। बेबी आई विल कॉल यू बैक। बाबा पास नहीं हो रहा हूँ, कुछ उपाय बताइए बाबा। न्यू यूजर यहाँ पे वो फोन नंबर डालो, रजिस्टर करो, रजिस्टर अकाउंट, न्यू अकाउंट। बड़े हाईटेक बाबा है, नंबर डाल दिए बाबा। ये क्या लिखा आ रहा है? ओटीपी। अरे ओटीपी आएगा फोन पे, ओटीपी। बाबा हमें तो एक बार में ओटीपी भी याद नहीं। अरे यूपीएससी क्लियर करना है, किताबें रट ही नहीं सकते, ओटीपी रट नहीं सकते। तभी तो आपके पास आए हैं ना बाबा, कुछ उपाय बताइए बाबा। हाथ दिखाओ। किससे एग्जाम लिखा था? पेन बटरफ्लो। तुम्हारा हाथ ट्राइमैक्स वाला है यार, ट्राइमैक्स से एग्जाम लिखो। चलो ये कर लेंगे बाबा, और कोई उपाय बता दीजिए, और कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? पैसा देना है क्या बाबा? बोलिए बाबा। सेंटर क्या है तुम्हारा? सेंटर? सेंटर हमारा दिल्ली है बाबा। दिल्ली। संदीप कुमार मीना को जानते हो? संदीप मीना। बिल्कुल नाम सुना है, भक्त हैं हम उनके। अरे एमसीआर में मैथ सेक्रेटरी है। किसने बनाया? किसने? आपने बाबा। हाँ हमारा वत्स। उसका सेंटर क्या था पता है? क्या था बाबा? दिल्ली। दिल्ली था? बंगलुरु। बंगलुरु था क्या? कलकत्ता। कलकत्ता तो होगा। बनारस। बनारस एग्जाम लिखो, ये बनारस से लिखे थे। चलो बाबा ट्राइमैक्स पेन हो गया बाबा, और सेंटर भी चेंज कर दिया। और कोई उपाय हो तो बताइए बाबा। अरे लूट गाड़ी 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 निकालो, एग्जाम क्लियर करना है ना। टाइम कैसे देखें? अरे करे यार, चल। ऑप्शनल क्या है तुम्हारा? ऑप्शनल पॉल साइंस है बाबा। बाद में फिलोसफी। फिलोसफी मित्रा आईएएस में जाओ, बाबा 420 कोड लगाओ, 10% ऑफ। अरे ज्योति यादव पालू है? ज्योति यादव। अरे उनको तो हम हमारी पुत्री हमने कराया। क्या बात है, क्या बात है बाबा। ऑप्शनल चेंज। चलिए ठीक है, और भी कुछ हो तो बता दीजिए बाबा। पैसे तो रहे नहीं हमारे पास। हाथ दिखाओ, हाथ। चल। अरे करण है। हो जाएगा, हो जाएगा।
बस इतना ही करना और तो कुछ नहीं बाबा। बस थोड़ा सा एक काम करो, हर शनिवार रात को 7 बजे सफेद मुंह वाला काला कुत्ता, उसको समोसों की हरी चटनी साथ में स्ट्रॉबेरी शेक पिलाओ, कृपा बरसेगी। बाबा ये सफेद मुंह वाला काला गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है। बाबा की दिव्य दृष्टि, आशीर्वाद, इसके अलावा पढ़ाई तो की नहीं। अब जय बाबू आ गए नतीजा देखने एक बार फिर से। आइए जानते हैं ढोलपुर हाउस के बाहर क्या हुआ। अरे इस बार तो बाबा जी की बूटी थी अपने पास में, कुछ तो भला हुआ ही होगा। ये मनहूस लोग फिर से आ गए। हटो यार, क्या है? अरे हटो यार, हटो। बाबा जी की माँ की जय हो। ये क्या हो गया? कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बाबा ऐसे निकलेगा सोचा नहीं था भाई। हर तरफ से निराश परेशान जयपाल चौधरी इस बार फिर से इम्तिहान में फेल। आ गया दोबारा सुट्टा चचा के पास। अबे तुम्हारा होगा भी नहीं, 24 घंटे तो यहीं रहते हो। अरे भाई क्या हालचाल, आदमी यहीं हो? अरे यूपीएससी वाले भैया आ गए। अरे स्पेशल एफसी का पूछो मत यार, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है। इतना इंटेलेक्चुअल हो गया हूँ कि सुबह सुबह बर्ड वॉचिंग करने जाता हूँ। इनकी कोई भी बात मत मानना, ये बाबा का चक्कर में पटके थे हमको, साले कमीशन खोर हैं। पीटी नहीं जाने पे सीधा चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेन होती है। और विलेज विजिट में तो मैन वर्सेस वाइल्ड की ट्रेनिंग चल रही थी, सांप बिच्छू से लड़ना पड़ रहा था। और वन एक्ट प्ले तो पूछो ही मत, इतने क्रिएटिव लोग हैं हमारे, प्ले के नाम पे गाना बजा के निकल लिए। अरे मजे तो आ रहे हैं। और असाइनमेंट तो पूछो मत, एक खत्म नहीं होता है, नोडल ऑफिसर के ग्रुप पे दूसरा आ जाता है तुरंत। अरे सुट्टा चाचा, आज सबको चाय और सुट्टा मेरी तरफ से करवा दो, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया भाई। हाँ भाई। अरे भाई तेरा कैसे हो गया? तुमसे तो 4 गुना हम पढ़ते थे, कैसे हो गया? अरे भाई ऐसा क्या कर दिया तुमने अभी तक? अरे सब कुछ किया, क्या नहीं किया? बाबा के चक्कर में रात को 7 बजे वो कुत्तों को और खिलाते थे हम, तुमने किया क्या वो? अरे क्या नहीं किया बोलो? इससे नहीं होता क्लियर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड का? अरे भाई तो यही तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हें चाहिए लेडी लक। वो क्या होता है? आ जाओ तुम्हें एक एस्पिरेंट की स्टोरी बताता हूँ। ब्राउन मुंडे का नाम सुना है? अरे बहुत सुना है। हाँ तो उनका 3 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं? चौथे अटेम्प्ट में उनको पंजाबन मिल गई और अब देखो एमसीआर में एसी की बढ़िया ठंडी हवा ले रहे हैं वो भी विदाउट एनी थर्मल शॉक। ये एसी वाली हवा एमसीआर में तो हमको भी खानी है भैया। हाँ तो भाई लड़की पटाओ और एमसीआर की टिकट कटाओ। अब जयपाल चौधरी लेडी लक की तलाश में आ गए लव बर्ड्स लाइब्रेरी, और यहाँ इनकी भेंट हुई कुमारी सिमरन मल्होत्रा फ्रॉम मिरांडा हाउस, टोटल इंग्लिश मीडियम। Done with GS, done with optional, but this CSAT looks so difficult. God, I wish someone could help me with it. Madam, CSAT help. Hi, do I know you? I am Jayapal Chaudhary from Muradabad. Same aspirant, same. Oh, hi, I'm Simran from Delhi. Very nice to meet you, madam. तो मैं ये कह रहा था कि मैं आपका सीसेट हेल्प कर दूंगा मैडम। Oh really? Thank you so much. I really need help. पर उसके बदले में आपको मेरे साथ सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी मैडम। Okay, sounds good. आज ही शुरू करते हैं क्या? तो भैया पूरे साल जयपाल चौधरी ने पढ़ाई के अलावा लाइब्रेरी में और भी बहुत कुछ किया।
और अब आ गए हैं ढोलपुर हाउस परीक्षा का नतीजा देखने। आइए जानते हैं क्या हुआ जयपाल चौधरी फ्रॉम मुरादाबाद के साथ। अरे तुम्हारा तो हो ही जाएगा भाई, सीसे यार आज रिजल्ट आ रहा है। We'll both clear अरे हटो यार तुम लोग, हर साल आ जाते हो। पता नहीं लेडी लग, देख ही लेते हैं आज क्या होता है। अरे भाई रैंक 63 मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे हटो यार क्या। God, rank 43, I made it. अरे you also selected? Yes, yes. Congrats. So when are you going to Labasna? Let's go together. Yeah, let's go together and let's go 4-5 days early. अरे कहाँ गई? अरे क्या है? प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। सिमरन जा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंसान देखेगी। शादी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया। निराश, हताश, परेशान जयपाल चौधरी जाएगा कहाँ? लौटकर ORN में सुट्टा चचा की चाय अड्डे पे। अबे भैया चाय पिला दो, एक खाते में लिख लेना। अबे आज तो कोई भी नहीं। अबे वो सब तो ठीक है, रिजल्ट आना था ना, क्या हुआ तेरा? अरे शकल देख के लग नहीं रहा क्या हुआ होगा। शकल देखो, शकल है मुझे ले। अबे ये तो होना ही था। क्या मतलब है होना ही था? नहीं होना ही था क्या मतलब है? क्या नहीं किए? सब कुछ तो किए, क्या नहीं किए? खुद पे भरोसा करके देखा? देख भाई, आज जहां तू खड़ा है ना, 14 साल पहले मैं भी आया था गोरखपुर से। सोचा था रेलवे में नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी होगी, सब खत्म हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। मैंने भी कुछ गलतियां करी, आज ये चाय की दुकान पे बैठा हूं। 14 साल में भैया एक चीज सीखी मैंने कि जिंदगी में आदमी को अपने सपनों का सफर खुद ही पूरा करना पड़ता है। दूसरों के भरोसे रहेगा ना तो ऐसे ही किसी चौराहे पे अकेला रह जाएगा। तो क्या है, जिंदगी में अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के भरोसे तो बस जनाजे निकलते हैं। ये तेरे को जो सपने बेच रहे थे ना, तेरे दोस्त, तेरी कोचिंग, तेरे बाबा, तेरी गर्लफ्रेंड, इन सबसे भाई तू सपने तो खरीद लेगा, लेकिन क्या सिलेक्शन, रैंक सफल हो पाया? कैसे होता भाई? क्योंकि तुझमें वो नहीं है जो सबसे जरूरी थी, तेरा आत्मविश्वास, तेरा यकीन, तेरी मेहनत। भाई जब तक तू नहीं बदलेगा ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून की आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। इनकी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। इस तरह जयपाल चौधरी ने पूरे साल खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, खाना पीना सब भूलकर कड़ी तपस्या की। आइए अब जानते हैं क्या हुआ जयपाल चौधरी का। क्या मुरादाबाद से शाहजहां रोड का सफर पूरा होगा? आइए चलते हैं ढोलपुर हाउस। इस बार खुशी है तो इस बात की कि मैंने पूरी मेहनत करी, और उससे भी ज्यादा इस बात की कि मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। ओह शिट, फाइनली बार बार फेल पे फेल, फेल पे फेल, फेल पे फेल। क्या? अरे बाबूजी पास हो गए, कॉल वॉल कर लिया करो। क्या ये आ रहे हैं? सर
कांग्रेचुलेशन सर, आपको हो गया? थैंक यू, फाइनली हो गया भाई। अरे सर हम क्या करें सर, बार बार फेल हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं किए सर हमने। क्या किए सर आप देखिए, हम यूट्यूब वीडियो देखे, टेलीग्राम की वीडियोस देखे हैं और PT 365 सारे कोचिंग करे, कुछ नहीं हो रहा है सर। बाबा जी की भी सुना था, हम वहीं पे भी गए, कुछ नहीं हो रहा है सर हमारा। चलो मेरे साथ, तो मैं चाय के ढाबे पे ले चलते हैं और जिंदगी जीते कैसे हैं वो सिखाते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। प्यारे से बच्चे देवनाथ फाउंडेशन के, थैंक यू सो मच, यू हैव विद ऑल आवर हार्ट्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हमारा टीम में कनिका इज द डायरेक्टर विद मी, एंड थैंक यू अभिषेक भारती, अभिमन्यु पोसवाल फॉर ऑल द प्रॉप्स एंड लाइट, एंड Kanika again for sound. This is Himmat as Jaypal Chaudhary from Muradabad, that's Archit Chandak as UPSC Baba 420, Prashant as qualified Bandgala UPSC. Then there's Rajat and Amit Ranjan, amazing on the notice board. Indrajit, Samir Saurabh, thank you for all the sound, for all the hard work, and also the idea of the play. This was Samir Saurabh, so he's the writer. Phoru Lalit, Shubham Nagrale, Shubhanvita Upadhyay, thank you so much, and again Sutta Chacha, thank you so much. Pushkin Jain for Sutta Chacha. Gunjan, Pijan IAS, thank you so much. Venkatraman, thank you for the new aspire. Who else is left? Nobody. All right, thank you DG sir. The play touches upon gender-based discriminations in the world of art, so we may all invite the team on the stage, please. जेंडर कम्युनिटी के बारे में बात करने से ही बचना चाहता है। इसी समाज में से एक सत्येंद्र कैसे खुद के घर, स्कूल और जिंदगी में उपेक्षा और तिरस्कार के साथ जी रहा है, उसकी जिंदगी का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। पता है जेम्स? हाँ क्या? आज अजय को प्रिंसिपल मैम ने अपने रूम में बुलाकर डांटा। अच्छा। मुझे रोज बुली करता है ना, आज पता चला उसे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। रोज मुझे परेशान करते हैं। अच्छा फिर से ये बताओ, वो कौन है जो स्विमिंग पूल में टी-शर्ट नहीं उतार पाता है? अरे अच्छा, वो कौन है जो अपने बटर लिप्स लगा के आया था? अरे वही तो है जो नाखूनी भी लगाता है। अरे सत्येंद्र ही तो है, हम लोगों के साथ वॉशरूम जाने में भी शर्माता है। अरे नाम का सत्येंद्र है ये, लड़का नहीं लड़की है ये तो। मैं मार दूंगा तुझे। अच्छा तू मारेगा? पहले ये तो पता चले कि मारेगा कि मारेगी। अरे जेब तू के हाथ में घूमता रहता है इसके, तेरे को अपनी से बना देगा ये भी। सुनो ना, मैं तुम लोग जैसा नहीं हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू हमारे जैसे नहीं है तो क्या इसके जैसे है? तुम लोग तो चुप रहो, काम दाम है नहीं, सबको परेशान करते रहते हो। अच्छा सुनो ना हमारी बात, तुम भी जाके चूड़ियां उड़ियां पहनो और उसके साथ नाचो। चलो नाचो। मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगा। डर लग रहा है मेरे को। और बोलेगा क्या कि तू लड़का नहीं लड़की है तू? और भाई तू चल इधर, उधर चल। अरे क्या बात, चलो रे। अब स्कूल जाऊंगा ही नहीं। क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मम्मी मैं कैसे स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाएगा तू? क्योंकि पापा स्कूल में सारे बच्चे मुझे तंग करते हैं। ओह बेटा, स्कूल में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, ऐसे दिल से नहीं लगाते। नहीं पापा आप समझ नहीं रहे, मैंने कह दिया ना मैं कैसे स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा जिद क्यों कर रहा है? ऐसा भी क्या हो गया कि तुझे स्कूल नहीं जाना? बच्चा है, सब तुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। मम्मी आप तो रहने ही दो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। स्कूल में सारे बच्चे मुझे परेशान करते हैं, मुझे टॉयलेट में बंद कर देते हैं, मुझे यहाँ वहाँ टच करते हैं। ये तू क्या लड़कियों जैसे बात कर रहा है? तू लड़का है, उन्हें पीट दिया कर। तुझे पता है जब मैं स्कूल में था 5-6 लड़कों को पीट दिया था मैंने। अरे आप तो रहने दीजिए, आपसे एक अखरोट तोड़ा नहीं जाता है, चले हड्डियां तोड़ने। आप लोग फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा ना मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं दीपक और जेम्स जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुम ही ने इसे बिगाड़ा है। और पहनाओ इसको फ्रॉक और दिलाओ इसको गुड़िया, अब भुगतो तुम इसी कपूत को। अरे रहने दीजिए, बच्चा है, समझ जाएगा धीरे धीरे। पूरे खानदान का नाम डुबो दिया इसने। कोई ये समझता ही नहीं है।
क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा, क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा। चलो बहुत बढ़िया, कल इसी वक्त मिलना, ठीक है? अरे रुको, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम हर रोज इसी वक्त रियाज के समय आते हो, बाहर ही बैठे रहते हो, बिना किसी से मिले तुम चले जाते हो। क्या मसला है भाई? मुझे कव्वाली बहुत पसंद है। ऐसा लगता है मानो परवरदिगार का दीदार हो जाता है। ऐसा लगता है मानो इस रूह का सैलाब थम जाता है। लेकिन क्या? लेकिन मैं एक हिंदू हूं ना। तुम दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये संगत, दीन, दुनिया, ये धर्म, ये सब हम इंसानों ने बनाया है। और कव्वाली तो ऊपर वाली की इबादत का जरिया है। जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। लेकिन मैं एक आम इंसान नहीं हूं। मेरे भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? एक पुरुष के शरीर में स्त्री होने की बेबसी। कागजात बनवाते वक्त आज भी मेरे हाथ उस मेल फीमेल खाने में रुक जाते हैं। 6 साल का था मैं, तब मुझे आभास हुआ मेरी मां जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, समाज के डर से, इस समाज के डर से, मेरे अपने पति के डर से, उसने ही मेरा त्याग कर दिया। मेरे पिता ने मेरा जीते जी दाह संस्कार कर दिया। मुझे डॉक्टर के पास ले गए, काले बाबाओं के पास ले गए, जैसे मेरे ऊपर किसी चुड़ैल का साया हो। इस समाज ने हमेशा मुझे बहिष्कृत निगाहों से देखा है। मैं घुटता रहा और एक दिन मैं इसी झील की तरफ बढ़ा खुदकुशी करने, और तब मेरे कानों में आपके कव्वाली की आवाज आई और मेरे पांव खुद ब खुद इधर बढ़ने लगे। ऐसा लगता था मानो उस अंधेरी रात में मुझे मेरा सितारा मिल गया। फिर तुम कभी अंदर क्यों नहीं आते हो? क्या करता? मैंने स्कूल में एक बार गाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे साथ पढ़ने वालों ने मेरी कमीज फाड़ दी थी। ऐसा लगता था मानो संगीत तो मेरा अधिकार ही नहीं है। पता है तुम्हें ऊपर वाले ने सबसे अलग क्यों बनाया? ताकि तुम हम सब के लिए एक मिसाल बन सको, और कव्वाली तुम्हें एक रास्ता दे सकती है। और रही बात लोगों की, लोग हमेशा से ऐसे नहीं थे। चलो मैं तुम्हारे धर्म की महाभारत की कहानी सुनाता हूं, जो कि हम में से कई लोग भूल चुके हैं। उस्ताद जिस महाभारत के अंश का जिक्र कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार है। उलूपी और अर्जुन का गंधर्व विवाह हुआ और 1 वर्ष के पश्चात उलूपी ने इरावन को जन्म दिया। इरावन के बड़े होकर अपने पिता की भांति रूपवान, बलवान और पराक्रमी हुए। प्राप्ति हेतु देवी काली के अनुष्ठान के लिए एक नरवंश देने की आवश्यकता है, परंतु बलि ऐसे व्यक्ति ही दी जा सकती है जिसमें 32 नैतिक गुण और संपूर्ण गुणों वाले केवल 3 ही व्यक्ति, कृष्ण, अर्जुन और इरावन। वीर इरावन ने स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन इरावन ने इच्छा जताई कि बलि से पूर्व
उनका विवाह कराया गया, जिससे मरने के बाद उन्हें दाह संस्कार और अंत्येष्टि का अधिकार मिला, क्योंकि एक अविवाहित पुरुष को दाह संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उनकी इस इच्छा को मान लिया गया, परंतु उस पुरुष से कौन स्त्री विवाह करने को तैयार होती है, इसको अगले ही दिन बलि दे दी। तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह कर उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। अगले दिन कृष्ण के कहे अनुसार इरावन अपने शरीर को काट कर देवी काली को अर्पित करने के लिए तैयार हुए और खुद को अर्पण कर देते। इरावन की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में अपने पति की मौत पर विलाप करते हैं, क्योंकि कृष्ण मोहिनी रूप के लिए पुरुष से स्त्री बनते हैं, इसलिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इरावन और कृष्ण के वंशज के रूप में माना जाता है। तो जैसा कि तुमने सुना, सिंध या लिंग हमारे इस प्राचीन सभ्यता में कभी भी इतनी कठोरता से विभाजित नहीं थे। ऐसी और भी कई सारे मिसालें हैं, जैसे अर्धनारीश्वर, जिनमें शिव और शक्ति दोनों के ही गुण हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। तुम भी अपनी एक पहचान बना सकते हो, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को अपनाना पड़ेगा, और इस जंग में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे अंदर छुपे हर इस दर्द को इस कदर निकालना चाहता हूं कि वो दर्द तुम्हारे गले में घुल जाए और तुम्हारी आवाज एक ऐसी नायाब एहसास बन जाए जो कभी भी किसी ने महसूस नहीं किया होगा। आज से तुम सत्येंद्र नहीं, सत्यश्री हो। खूब मन लगा के पढ़ो। छाप तिलक मोहे छीन लेनी मोसे, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, सेना चलई के, सब कुछ मोरा छीन लेने। महिलाओं को पारंपरिक मुस्लिम संगीत से बाहर रखा जाता था, क्योंकि उन्हें पारंपरिक रूप से पुरुषों की उपस्थिति में गाने की मनाही थी। हालांकि गायिका आबिदा परवीन ने अपने प्रदर्शन में कव्वाली तकनीकों को तेजी से शामिल किया है, फिर भी उन्हें कव्वाली गायिका नहीं माना जाता है। इसी तरह हमारे गायक सत्यश्री पहले और एकमात्र ट्रांस कव्वाली गायक हैं। LGBT अधिकारों के लिए उनके गीत लिंग आधारित भेदभाव की तलवार हैं। अभी भी कई लोग उसे उसके लिंग के कारण कव्वाली गायक नहीं मानते हैं। सत्यश्री चिंतित नहीं है, वह लिंग से परे हैं। समाज की घृणा और परिष्कार के प्रति अदम्य साहस, धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया है, वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आइए हम मिलकर अपने संविधान के संस्थापकों की महान कल्पना को साकार करें। एक ऐसी जगह बनाएं जहां सभी को बढ़ने के समान अवसर मिले और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो। Very good evening, respected dignitaries, my fellow OTs. I'll just give a brief introduction of our team.
starting with Mr. Ankit Sharma on lights and music. Mr. Prabhat Kumar as narrator. Mr. Akshans in tableau. Mr. Abhishek Singh is president and in tableau. Mr. Jamuna Prasad Bhagna as props. Deepak Sharma as younger version of Satyendra. Nagendra Balaji in props and tableau. Shailendra Kumar Meena as a bully and in tableau. Pooja Godara as Naga Princess and the mother. Abhinav Goyal as the father. Chintala Sunil Chaudhary as the Kawali. And Sachin Kumar as the lead. Anupam as a Kawali. Ajay Sharma as Arjun. Gopal Krishna Gautam as a Ravan. Maninder Singh in tableau. And Ajit Pratap Singh as a bully. And last but not the least, as our lead director and writer, Mr. Ram Sundar. ये जो कहानी है, इसके सभी पात्र और घटनाएं केवल काल्पनिक ही नहीं, बल्कि सरासर झूठ पर आधारित है। लेकिन इन झूठी कहानियों से अगला नाटक हमें कुछ उन सत्यों से वाकिफ करवाना चाहता है जो हमारे सामने होकर भी शायद हम देखते नहीं हैं। क्या होता है जब हम हमारी सर्विस को ही हमारी इकलौती पहचान बना देते हैं और भूल जाते हैं कि ये सर्विस में शामिल होने से पहले भी हम कुछ थे और बाद में भी कुछ रहेंगे। तो प्रस्तुत है क्षितिज तवरेज द्वारा निर्देशित एकांकी स्वयंवर ऑफ सर्विसेज। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे नमस्ते पंडित जी, कैसे आप? सब कुशल मंगल? जी जी, सब आप ही की कृपा है जी। चलो बढ़िया है, आइए आइए बैठिए। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद। बड़े दिनों से सोच रहा था मैं आपसे मिलने की। हमारी बेटी है ना जानकी, उसका ब्याह करना है। आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइएगा। अच्छा, जानकी बिटिया बड़ी हो गई बड़ी जल्दी। अच्छा अच्छा, कैसा लड़का चाहिए आपको? जी हम तो ये मानते हैं दामाद हो तो सरकारी अफसर ही हो। अरे बात तो आपने सही कही है। तो कौन सी सर्विस वाला लड़का ढूंढे? आईआरएस लड़का है आपकी कोई जानकारी में? सुना है बहुत पैसे वाले होते हैं। अच्छा, आईआरएस कौन सा वाला है? क्या मतलब? अरे आईआरएस तो एक ही होता है, इनकम टैक्स वाला। अरे भाई साहब, किस जमाने में जी रहे हैं? 10 साल हो गए, कस्टम एक्साइज वाले भी अपने आप को आईआरएस बोलते हैं। हाँ तो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों रेवेन्यू वाले तो है, हमें दोनों ही चलेंगे। बट आपने तो सुना होगा जब से इनका फेसलेस हो गया है, कुछ रखा नहीं इनकी सर्विस में। ओ, तो एक काम करो, कोई आईएफएस लड़का देख दो। अच्छा, आईएफएस कौन सा वाला? क्या मतलब? अरे आईएफएस तो एक ही होता है, फॉरेन वाला। अरे भाई साहब, किस जमाने में जी रहे हैं? फॉरेस्ट सर्विस वाले भी अपने आप को आईएफएस बोलते हैं। अरे नहीं भाई, वो तो आईएफओएस होते हैं। अरे भाई साहब, आप किसी के अटेंडेंस की छाट से देख लीजिए, सबका ओक कटाई मिलेगा। क्या चाहिए तो ज्यादा आपको? अरे ना भाई, बिटिया को विदेश भेजना है, जंगल नहीं। बट आपको तो पता होगा इनकी पोस्टिंग उज़्बेकिस्तान भी हो जाती है। अरे भाई अरे भाई, उससे अच्छा तो बिना फेस वाला आईआरएस ही चलेगा। बात तो आपने सही कही है। तो अच्छा क्या करे? एक काम करो, आईएएस लड़का देख दो। अच्छा, आईएएस कौन सा वाला? तो भाई आईएएस तो एक ही होता है। हाँ हाँ, आईएएस तो एक ही होता है, बट आईएएस भी तो होता है। मुझे लगा ना भाई ना, आईएएस से कौन क्यों शादी करेगा?
पूरी जिंदगी तो उनकी दूसरों की गलती निकालने में निकल जाती है। हमारी जान की भी सारे दिन ऑडिट ऑब्जेक्शन ही निकालते रहेंगे। बात तो आपने सही कही है, तो एक काम करते हैं, आईएएस लड़का ही देख लेते हैं। पंडित जी आप आईएएस देख रहे हो तो आईपीएस भी देख दो। अच्छा आईपीएस कौन सा वाला? पंडित जी आप दिमाग मत खराब करो, आपने बोला ना पोस्टल वाली भी आईपीएस होता है, यही काट दूंगा। अरे अरे आप तो सुबह बैठ गए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो एक काम करते हैं, सारी सर्विसेज को बुलाते हैं, आपकी जानकी का स्वयंवर कराते हैं। जो आपकी जानकी को भाएगा वो उसे ले जाएगा। ये करी ना आपने सुबह से पहली ढंग की बात। इसी बात पे अगर थोड़ी सी दक्षिणा हो जाती तो। पंडित जी आप स्वयंवर सफल कराइए, लक्ष्मी लक्ष्मी मिलेगी। अरे जो मालिक, जो मालिक। I welcome you all to the scintillating constellation of All India and Central Civil Services. मेरी जानकी का स्वयंवर शुरू किया जाए। जी आप तो बहुत ही बड़े अफसर लग रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताइए ना। जी आप बताइए आपके बारे में, मेरे बारे में छोड़िए। कौन सा कार्डर है जी आपका? कार्डर? पर मैं तो प्राइवेट में जॉब करती हूँ। क्या? ये कार्डर बेस्ड मैरिज नहीं है? ओ यार फालतू में, इतनी दूर से मणिपुर से आया मैं। उफ, चलो कोई नहीं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप you all graduate to higher service in future. आज ये ऊपर समझता खुद को, ऊपर पहुंचा दो साले को, उठा के बटूआ, उठा के बटूआ। आपसे ऊपर कौन ही है? मैं आपसे हाथ शांत हो जाइए। अरे आप जो ये इतनी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हो, कभी नोडल ऑफिसर रह चुके हो क्या? चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप सब लोग ये समोसा खा लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। वाह क्या समोसा बनाया, मजा ही आ गया। अरे वो तो मैंने बस ऐसे। थैंक यू मेस कमेटी फॉर द ग्रेट समोसा। अरे पर ये तो मैंने बनाया है। अरे आप बुरा मत मानिए इनकी बातों का, इनकी एफसी की पुरानी आदत गई नहीं, ये कड़ी अच्छा वो छोड़िए, आप कौन? आप अपने बारे में बताइए कुछ इंटरेस्टिंग। जी मैं सुन के कोई भी नशीला पदार्थ पहचान लेता हूँ। इस मामले में मेरी ना कुत्ते से भी 2 कदम आगे है। कोकेन था, कुछ और दिखाओ आपको। क्या कार वाले हैं? ये भी कोकेन था। ये सब अरे ये क्या हो गया आपको? ठीक तो है ना आप? अरे उठिए 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 ना। अबे कुर्सी से तो उठ जा मेरी इडियट। जी आप तो बड़े मिस्टीरियस लग रहे हैं, वैसे बता ही दीजिए करते क्या है आप? वैसे पहले मैं बहुत छापता था, मतलब छापे मारता था, लेकिन आजकल मैं डांस कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ और जिम कर रहा हूँ, और जब से आपको देखा है बस प्यार ही प्यार कर रहा हूँ। अच्छा वो छोड़िए,
एक साथ कितनी सारी चीजें बैलेंस कर लेते हैं आप। पर वैसे एग्जैक्टली काम क्या करते हैं? आजकल हमने काम से इश्क को छोड़ दिया है। अभी हम इश्क को ही अपना काम समझते हैं। आप तो हर चीज में मिस्ट्री डाल देते हैं। पर ये मास्क क्यों लगा रखा है आपने? अपना फेस तो दिखाइए। मास्क फेस के बारे में मत पूछो पुष्पा। अरे ऐसे कैसे? फेस तो दिखाना ही पड़ेगा ना। फेस के बारे में मत पूछो पुष्पा। नहीं विजय, इस फेस के बारे में तुम्हें बताना ही होगा। पुष्पा, फेस के बारे में मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। अरे मैडम, जब से इनका फेसलेस हुएला है ना, किसी को मुंह दिखाने लायक बची नहीं है ये लोग। क्या हंस रहे हो? हंस क्या रहे हो यार तुम लोग? मजाक बना के रख दिया है हमारा। हाँ, हूँ मैं फेसलेस, पता है, अच्छा सा कटा है हमारा। एग्जाम में आईपीएस के ऊपर वाली रैंक थी, मुझे थोड़ी ना पता था मैं फेसलेस बन जाऊंगा। चॉइस गलत भर दी। आजकल तो लोगों के बटवे मार मार के जी रहा हूं, तो क्या करूं? मेरी खुद की लाइफ जीने का कुछ अधिकार नहीं है मुझे, तो शादी करने का कुछ हक नहीं है मुझे। ए पाकिट मार, ये बंद कर अपना मेलोड्रामा। क्या ए, तेरे को ना एक मस्त चीज दिखाता है मैं। क्या ये देख, 20 रुपए। पैसा 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 पैसा। थैंक यू सो मच, यू जस्ट सेव्ड मी फ्रॉम दैट वीप। अरे मेंशन नॉट मैडम, ये ज्यादा बोलेगा ना, इसके सारे स्पीड को डिले करा देगा मैं गर्लफ्रेंड को मैसेज भी नहीं भेज पाएगा ये। पर मैसेज तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं ना। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो मैडम? टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, आजकल तो सिर्फ चिट्ठियों का जमाना है, चिट्ठियों का। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर आप काम क्या करते हैं? वो क्या है ना मैडम, अपना हेलो जमील, ये क्या रे, अभी तक तू चिट्ठी पहुंचाया नहीं? अरे मैडम कब से अपने लव लेटर का इंतजार कर रहे रे बाबा, तेरे से तेज तो मेरे कबूतर है रे, भिजाना बाबा जल्दी। मैडम हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप काम क्या करते हैं? वो क्या बोले तो ये क्या रे, चिट्ठी पहुंची नहीं क्या अभी तक? आगे करूँ क्या तेरे को डिलीवर? डाकिया समझाएगा तूने मेरे को, पहुंचाना जल्दी। आप ना एक काम कीजिए, आप अपनी चिट्ठियां ही भेजिए, मैं कट रही यहाँ से। अरे मैडम आप तो बुरा मान गई मैडम। अभी कैसा, अपनी पहली लड़ाई भी हो गई है, अभी मस्त आपको पोस्ट कार्ड भेजा मैं मैडम। अरे बैठ रहा ना बाबा सबूर जी। आप कौन? ओ IAS। अच्छा, तो ये डबल ए का क्या मतलब हुआ? डबल ए का तो एक ही मतलब होता है, आध्यात्म और आध्यात्म। ओके, पर मैंने ये सुना है कि आप इन सब के कामों में गलतियां निकालते हैं। इस सब के कामों में गलतियां निकालने वाले हम कौन? वो तो बस प्रभु श्री राम निकाल सकते। तो फिर आपको कोई डर या चिंता नहीं होती कि ये सब लोग आप पे गुस्सा हो जाएंगे? चिंता? और मुझे हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता। बंद करो ये भजन, बंद करो बंद करो बंद करो। जय श्री राम। हाँ हाँ, जय श्री राम जी। आप तो होशियार लग रहे हैं, आप क्या करते हैं? चिड़िया तो बड़ी रंगीन है। क्या क्या कहा आपने, क्या कहा?
वही कर रहा था। वो क्या है ना, मुझे वाइल्ड लाइफ का बड़ा ही शौक है, वाइफ का भी। यू डिस्गस्टिंग, और ये कैमरा बाजू में रखना वरना तोड़ दूंगी। मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा था। वो क्या है ना, आप एक्चुअली में भी बहुत खूबसूरत। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो खुश होता हूँ ना, तो मेरे अंदर से जानवर की आवाज Stop it! Please stop it for God's sake! Stop it! नहीं करनी मुझे ऐसे मोगली से शादी। सारे के सारे जंगली भरे पड़े हैं। कोई एक अच्छा, एक सोफिस्टिकेटेड लड़का नहीं मिल सकता? Did you say sophisticated? हाँ जी। Dear Janaki, I saw a damsel in distress. Another white man's burden. I took it upon myself to come and rescue you, my love. लव? लव किसको बोल रहा है? मैं सस्ते शेक्सपियर। गवाल लड़की। That's just an expression, darling. और अब डार्लिंग, बड़ा बदतमीज है ये आदमी। That's preposterous. First of all, learn to distinguish between a real IFS and, well, the jungly one. Secondly, I must beg your pardon. I remembered an exquisite chess move that I had to make. I mustn't be late. क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? मैंने तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैडम, इसकी जांच करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट आपकी सेवा में हाजिर है। ओह, तो आप आईपीएस हैं? आईपीएस। हाँ, वही तो बोली मैं, आईपीएस। आईपीएस। तो आप करते क्या है? करते क्या है? जी हम डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं। कौन बोला? कंट्रोल होते हैं। आईपीएस इज बेटर देन आईएएस, 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 आईपीएस इज बेटर देन आईएएस। वो डीएम साहब आ गए। जय साहब। कंट्रोल उधर, कंट्रोल 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 कंट्रोल। जी हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी गाड़ी है। कंट्रोल उधर, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। No. These barbarians are ridiculous. तुम सारा गुलाम लोग हमारा जूता का नीचे ही रहेगा। This mate needs to take a chill pill. दूर साला, तब से एक्सेंट पे एक्सेंट मारे जा रहा है। हमरे साथी को दरभंगा में तैयारी किए रहे तुम, याद है? Blimey! What a sorry state of affairs! And what even is this place? Dada Banga? I don't even recognize this fella. तो तुम्हारा जोरू करिश्मा भी बोले रहे, याद है? करिश्मा? हमार जोर करिश्मा? हमार सच्चा प्यार करिश्मा? करिश्मा? रेशमा? माँ! माई! कोई
मेरे माँ मुझे वापस दे दो। ए बंद करना रे, ये 50 रुपए कार्ट्रिज के और एक्टिंग के खुद को क्षितिज सक्सेना समझता क्या? क्षितिज तो उड़े जा रहे तो बंद करो सब। क्या लगा रखा है? ए बीड़ू सुनना रे, बीड़ू सुनना। तेरे को एक बात बोलने की थी रे, एकदम दिल के करीब की है रे मेरे बात। वो जो तुम्हारे मेस का खाना है ना, उतना भी कुछ अच्छा नहीं है क्या? जोमेटो का खाना अच्छा है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मेस का खाना अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा। मेस कमेटी जिंदाबाद, मेस कमेटी जिंदाबाद, मेस कमेटी जिंदाबाद। And if the gentleman has real problems, let's take it outside. बैठे हैं मेरे बेटा मेरी बात मानो। क्या निकल? शादी किसी की सर नहीं करनी, उसका दिल देखो। ये देखकर कभी क्या तुम उसके साथ पाओगे? What your powers combine, I am Captain Aramis! And we are here for the Spangboard! ए झुक गाड़ी, फिर से लेट हो गए कह रहे तुम लोग। ए स्वयं हीर गेम खत्म, चलो निकले, कटले प्लेटफॉर्म खाली, चलो। वो क्या है ना बनता है, ये कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, वास्तविकता से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो क्या ऐसे दिल में खूबसूरत लेके दूसरे का नहीं है ना। अभी अपन भी कटता है बोले तो वंटा, चले जमीन निकाल रहे साइकिल अपनी। आपने देखा ही हमारी टीम में डीवी हरीश वाज ऑन साउंड, एक्सीलेंट वर्क, आदर्श ऑन लाइट्स, Prashant Sagar as IFS as well as Captain IRMS, Niketan Kadam as IAS, Adarsh as Arpit as Revenue and Customs, Rajiv as Postal, Madhulika as Janki, Keshav as Janki ke Papa, Dhananjay Babu as IRS, Dev Jyoti as Pandit, Jay Shah as IAAS, my co-director Tejasvi Singh, and then finally as then Shweta on the other corner as Dadima, and then finally Nitin Bhai, Faisal Bhai and Nupur as Railway. So
Thank you so much. Thank you so much. Your response was really amazing. Thanks. This is by Krishna Kumar and team. The play portrays various life aspects of an officer trainee in MCR. Let's welcome the team. नमस्कारम डीजी गारू एवं समस्त दर्शकगण। हमारे नाटक का शीर्षक ला वा ओ एट MCR, क्योंकि हमारे निदेशक आधे फ्रेंच हैं, इसलिए आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं जिंदगी एट MCR। नाट्य में दिखाई जाने वाली सारी घटनाएं विशुद्ध रूप से वास्तविक हैं। सारे पीड़ित पात्रों का जीवित ओटी और वस्तुओं से पूर्णतः वास्तविक संबंध है। यदि इस नाट्य में कि किसी घटना या किसी की भावना आहत होती है तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आइए अब देखते हैं MCR आने से पहले हमारे OTs की बदहाल जिंदगी। अबे यार, ये करने आया था क्या UPSC में? सोचा था रफाल खरीदूंगा, जेट सबमरीन प्रोक्योर करूंगा। क्या कर रहा हूं? आलू, अंडे, प्याज। क्या जीवन है भाई। IDAS लूट लिया तुमने। जैन सर। हाँ, अरे राज, उस रेप केस का क्या हुआ भाई? सर वो DSP को सर। अरे क्या DSP लगा रखा है यार, तुम खुद एक IPS अधिकारी हो, पूरी ट्रेनिंग किए हो ना NPA में। सर वो आईओ को सर बोला। अबे आईओ तुम जिंदगी भर दरोगाओं के चंगुल में फंसे रहोगे ना बेटा, ऐसे ही होगा तुम्हारा। सर जिंदगी में कुछ अच्छा करो, ट्रेनिंग पाए हो NPA से। सर हाँ, ये सर नहीं है, मुझे अक्यूज चाहिए 2 दिन के अंदर अंदर, और खुद टीम को लीड करो, नहीं तो ये फलता है तुम्हारी एक IPS होने के नाते। लानत है तुम्हारे जैसे अधिकारियों पे। सर। अरे यार, क्या नौकरी ज्वाइन कर लिया है यार। दरोगा का पावर देख के साला IPS प्रेफरेंस भर दी है। हद है यार। भक। क्या हाल विभोर भाई? बढ़िया निरुद्ध भाई, बढ़िया। हमारे तो हालत नौकरी तुम्हें पता ही है, तुम तो जंगल के राजा हो। DFO। क्या खाक जंगल के राजा? साले सुनसान जंगल में पड़े रहते हैं। कोई वहां सेंसस के नाम पे वो बाघ की सीट गिनवाते रहते हैं, और कभी कभी केके का फोन आ जाता है, बोलता है कि यार वो गर्लफ्रेंड आ रही है, थोड़ा जंगल में मंगल करना है, गेस्ट हाउस बुक करा दो। साला यही जिंदगी बची है यार। तुम्हारी भी हालत बहुत खराब है निरुद्ध, बहुत बकवास जिंदगी। बैठो। ईमेल की जिंदगी में, ईमेल की दौर में चिट्ठियां कौन लिखता है? यहाँ साला थूक भी सूख गया है चिट्ठियां बांटते बांटते। सारे पीड़ित ओटियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए स्वयं अवतरित हो रहे हैं आप सभी के सामने डीजे गारू। Yo, teach myself DJ Garu. चेस्तारो। ओटीज, आपके जीवन की सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए हम एफसी नहीं, स्पेशल एफसी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आपको सब मिलेगा, कंफर्मेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, कांदा, लहसुन, सब मिलेगा। तब आपको क्या चाहिए? बोलो बस। डीजे गारू, आलू खरीदते आलू सा हो गया हूँ। श्रेडेड बॉडी बनवा दो डीजे गारू। बस दोनों साथ में बनाएंगे श्रेडेड बॉडी। डीजे गारू, मैं पटना से पलक्कड़ चला गया हूँ, वहाँ अकेला हो गया हूँ, कोई शादी करने को मिलेगी क्या? करेंगे, सब करेंगे। चूसता रो। बोलो बस। डीजे गारू मैं बहुत पतला और कमजोर हो गया हूँ, बकरी मिलेगी क्या? चूसता रो। मटन बिरयानी खिलाएंगे तुम्हें। गोवा जाने में मिलेगा गारू? सब मिलेगा। नशा बहुत हो रहा है डीजे गारू, करवा दो क्या?
अरे आप सही जगह हैं। एमसीआर एचआरडी का तो दूसरा नाम ही नशा मुक्ति केंद्र है। सर इंटर सर्विस बॉन्डिंग बनवा देंगे सर। पत्नी को जंगल में घुमाने में, डिफेंस का सस्ता दारू लेने में, टिकट कंफर्म कराने में बड़ा दिक्कत आता है सर। चुस्तर सब होगा। आओ ओटी आओ मेरे साथ एमसीआर एचआरडी आओ 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 आओ। एंजल डीजे गारू ने जो वादा किया था, उस वादे की खुशी में शराबोर सारे ओटी हॉस्टल में पार्टी करना शुरू करते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि एमसीआर में जो इंटर सर्विस कमरेडरी की बात हुई थी वो क्लासरूम में पूरी हुई, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर गोदावरी के हॉस्टल में आप आके देखें तो वो सारी रात की पार्टियों में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हुई है। अब रात्रि का हम वो सीन दिखा रहे हैं आपको। शराब के नशे में मदमस्त ये सारे ओटी सो रहे हैं। तभी सुबह की पहली किरण जाई है और ये सीटी के साथ एक आवाज आ रही है, हे नर कुछ तो कर। कहीं नहीं जाना। क्या हुआ? उसका क्या यार, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अबे पुलिस वाले थोड़ा ही पीटी में जाते हैं। अरे यार चलो अटेंडेंस तो लगा देते हैं यार। अबे कौन जाएगा रोज रोज? चलो अबे चल घोटी वाले यार रोज। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ग्रुप पोजीशन। अरे यार इतने दिन हो गए पीटी करते करते, अभी तक पोजीशन नहीं लेते आनी। ग्रुप जैसे थे आज हम करेंगे स्क्वाट्स। आपको जैसे पता है कि 4 दिन में अपने को ट्रेकिंग के लिए जाना है, उसके लिए टांगे मजबूत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सबको पता है खुद के स्क्वाट्स कैसे करते हैं। ग्रुप स्क्वाट्स के लिए तैयार हो। ग्रुप पोजीशन। डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। हे नर ऊपर नीचे कर, आगे पीछे कर। सर नर पीड़ित है सर। अरे कुछ तो हरकत कर। जवाब दे दिया सर। अरे यार आप साइड में बैठिए, साइड में बैठिए। अरे यार आज तो अपने साथ डीजी सर भी पीटी करने आए हैं। सर आप थोड़ा आराम आराम से करिएगा। सर आप थोड़ा आराम आराम से करिएगा, ठीक है। आपको लेग्स की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हेड रोटेशन करिएगा, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। अरे यार पूरा स्क्वाट कर, आधा क्यों कर रहा है? अरे सर सीधा बिस्तर से उठ के आया हूँ सर, पूरा कर लिया तो फिर डीजे सर को दिक्कत हो जाएगी। अरे यार साइड में रहिए, साइड में रहिए। डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। हे नर जरा और तेज कर, और तेज कर, और तेज कर। नहीं कोई नींबू पानी ले आओ यार। अरे मोटिवेशनल स्पीकर को इतना सीरियसली नहीं लेते यार। डीजे गारू का गिरना वो सारे पीड़ित ओटियों के लिए उनकी आशाएं और आकांक्षाओं का गिरना था। इनके साथ जो इनकी जिंदगी में कुछ छोटी मोटी खुशियां बची थी वो भी कहीं गिरती हुई जा रही थी, क्योंकि एमसीआर में जो वादा किया गया था ठीक उसका विपरीत हो रहा था। क्लास आओ, असाइनमेंट दो, डेडलाइन, प्रोजेक्ट, और फिर एके सिन्हा वन एक्ट प्ले भी तो आ गया। तो इस बीच एमसीआर की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एकमात्र जगह जो सारे ओटीज का सहारा है, जहां हम लोग घंटों बैठकर अपना समय बिताते हैं, वह है दारू कहानी। तो अगला दृश्य हम आपको ले चलेंगे दारू कहानी की तरफ, जहां पे बैठ के कुछ ओटी क्या करना है इस एमसीआर से बचने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। अगला दृश्य दारू कहानी। अबे यार आजकल कुछ चल ही नहीं रहा है, बोर मार रहा है ना। वो मोती आ गया क्या वहां से गया हुआ था जो पौंडीचेरी? अरे गोवा है वो, गोवा निकल लिया वहीं से डायरेक्ट। अबे यार, अरे अन्ना कहाँ है? अन्ना को बुला।
बुला गई तो है। हेंड्रा बाबू चबंडी अन्ना क्या क्या मिलता है इधर? सब मिलेगा सर, आपको क्या चाहिए? मसाला वोडका, जिंजर बियर, इलायची, रम, क्या चाहिए? अरे अन्ना ऐसा करो, एक थिंकिंग स्टिक लेके आओ। थिंकिंग स्टिक चाहिए साहब, अभी लेके आता था। दो लेके आना हम सबके लिए। और बताओ यार, ये लोग बैठे यार, बैठे यार, ट्रिप प्लान करते हैं। शादीशुदा हो, दर्द समझते ही होंगे हमारा। और क्या, 3 महीने हमारी जिंदगी के हैं, ऐस काट लो तो ट्रिप प्लान करते गए। तो केटीपी लोग तो पूरे क्लास करे पड़े हैं। अरे केटीपी तो भगवान। चलो यार लेक्चर चलते हैं, बहुत क्वालिटी लेक्चर होते हैं यार। कोई तो मजा आ रहा है यार, रिसोर्स करते हैं मजा आ रहा है। ओ बिरजू, अरे रुक जा, अरे रुको, अरे परेशान। अटेंडेंस लगा दियो भाई। अरे भाई तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुम्हें पता है इतना अच्छा अच्छा लेक्चर चल रहा है। डीजी गारू ने बोला 16,000 रुपए में एक लेक्चरर आता है। चल लो, कुछ कर लो, जिंदगी बन जाएगी तुम सबकी। ले जा, 2 अंगूठा लगा देना मेरा। नहीं होगा यार। अरे लगा देना, लगा देना। अरे इन लोगों को कुछ मत बोलो, भगवान है ये लोग। सही बात है यार, इनके कारण ही बचे हम लोग। भगवान इनकी उंगलियां सलामत रखे। एक काम करते हैं ना, इसे 16,000 का फंड दिला देते। इसको सही में फंड दिलाना बनता है। आज संडे है लेकिन क्लास लगेगी। संडे है पर क्लास लगेगी ही लगेगी। लगाओ इसको। फ्रेंड कॉल। हेलो, नमस्कारम गारू। नमस्कारम नमस्कारम। मैं एफसी सेक्रेटेरिएट से बोल रहा हूँ, नंबर 35 से सर। हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर आज वाइस प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं सर। डीजे गारू ने आपको नॉमिनेट किया है सर। मुझे नॉमिनेट किया है सर? हाँ, यस सर, यस मेरा सर। ब्रिजेश बादल नाम एक बार चेक करिए, मुझे ही किया है ना सर? आपको ही किया है सर। आपको उनके साथ सर एस्कॉर्ट पूरा करना है, लंच भी करना है, और हो सकता है आप घर भी जाएं सर। अरे वो लंच होगा क्या मेरा? हाँ सर, बंद करना, बंद करना, सर बंद करना। रिक्वेस्ट है सर, वो बंद करना सर, पहन लेना सर। अरे मैं सब तैयारी कर लूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आप टाइम बता दीजिए। अब तो मजा आएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप छा जाऊंगा मैं डीजी गारू के साथ जब करूंगा 1-on-1 लंच। मजा आ जाएगा। अरे यार लेकिन मेरे पास तो वो नहीं है, चाइनीज शर्ट नहीं है, केके को कॉल करना पड़ेगा। हेलो हेलो भाई, हाँ भाई तेरे पास शर्ट है क्या यार? चाइनीज शर्ट है क्या यार? बहुत इमरजेंसी है यार। भाई डेट पे जा रहा है क्या? अरे भाई तू समझ नहीं रहा, डेट क्या है इसके सामने यार। 1-on-1 बीपी गारू के साथ मेरा लंच है भाई, तू दे दे यार, चाहे गंदी हो मैं खुद धो लूंगा, प्रेस कर लूंगा भाई। आजा आजा भाई, ले जा 419 से। आता हूँ भाई प्रेस भी है क्या? गंदी प्रेस करना है यार, ले जा, वो भी है। अरे आया भाई, आया। अब ये बंद करना है। बता इसको, इसकी वीडियो बना ले। वीडियो तो बना ही लेते हैं। इसकी वीडियो बना लो, वीडियो बना लो, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। इंस्टाग्राम पे फेमस बना लेते हैं। कहाँ चल गया? आया नहीं अभी तक। अबे एक बार कंफर्म करेंगे क्या? कंफर्म करेंगे। नहीं आएगा ही भाई, जब बोल आएगा ही यार, आएगा ही। खुश है। अरे चेस्ता देखो आ नहीं रहा तो इतना टाइम कैसे लगा दिया? पूरा तैयार हो गया अब यहाँ क्या होगा? कितना स्मार्ट लग रहा है। यस, आज तो मजा आएगा। भाई तू देखेगा भाई, शाम को पता चलेगा। आज तो तू देखेगा क्या होगा, जल्दी पता चलेगा। आज तो दशरथी ऑडिटोरियम का है। स्मार्ट तो लग रहा है। अरे श्यामलाल यार, क्या है? सारा बंद है, ऑफिस यार, क्या है तुम्हें पता नहीं यार? वीपी सर आ रहे हैं यार, क्या है यार? क्या करते रहते हो ना यार? क्या हुआ उसको? अरे वीपी सर आ रहे हैं, मेरी लंच लेके आया सर। आपको लगता है मैं लेता हूँ क्या? केटीपी हूँ मैं यहाँ का सबसे बड़ा, आपको लगता है क्या? पर ऐसी बातें कर रहे हैं सर। अरे नहीं कर रहे हो भाई, वीपी सर आ रहे हैं, आप समझ लो, एक बार फोन मिला। आ रहे हैं सर? अरे आ रहे भाई, मेरा 1-on-1 लंच है। क्या कर रहे हो श्यामलाल? सर अरे फोन करो यार, डीवीडी सर को फोन करो आप एक बार। अरे क्या करते रहते हो यार, सीरियसली नहीं लेते। हेलो, हाँ श्यामलाल बोलो। गुड मॉर्निंग डीवीडी सर। गुड मॉर्निंग श्यामलाल। सर एक ओटी आया है सर। कौन है? ये सर ब्रिजेश है सर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वीपी सर आने वाले हैं और उनको मिलना है उनसे सर, उनका एस्कॉर्ट ड्यूटी लगाया है। अच्छा बात करो। यस सर। हेलो डीवीडी सर। बोलो क्या? मैं ब्रिजेश बोल रहा हूँ, वीपी सर का एस्कॉर्ट ड्यूटी है मेरे। अरे लंच है उनके साथ 1-on-1।
क्या कर रहे हो आप लोग? बंद कर रखे हो यहाँ पे ऑफिस? अरे आज संडे है, कोई बीपीटीपी नहीं अरे मेरे पास कॉल आया था, लैंडलाइन पे आया था। अरे नौटी रहमान ने प्रैंक किया होगा तुम्हारे साथ। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, ये क्या चल रहा है? ये प्रैंक थोड़ी ना होता है, ये बीपी सर आ रहे हैं। सर अभी तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना सर, वो तो राज्यसभा में है सर। लगता है किसी ने मेरे साथ बहुत, बताना मत किसी को सर, मैंने बोला था यार, बताना मत सर। अरे आ गया मिलके बीपी से। अरे यार क्या बताओ तुम लोगों से यार, क्या हुआ है मेरे साथ आज यार। क्या हो गया? अरे फोटो बता सकता हूँ भाई यार, बहुत गंदा हुआ है मेरे साथ भाई। सुबह 9 बजे कल था, जैसे पता चला बीपी सर का स्कॉट ड्यूटी है, पूरा विकिपीडिया पेज पढ़ा बीपी सर के बारे में, पूरी तैयारी की भाई, नहाया धोया, बंद गला प्रेस किया मैंने खुद शर्ट धोए यार, लेकिन किसी ने मेरा साथ बहुत गंदा प्रैंक किया है, बहुत गंदा। अबे कितने का बंद गला था तेरा? गला कितने का है ये तो 16,000 का लिया था मैंने। क्यों 16,000? अरे लग गया। क्लास यार हटाओ, बंद करो। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जैसे केटीपी को प्रैंक करने के बाद पीड़ित ओटियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि आज के बाद वो कभी क्लास में नहीं जाएंगे। और क्लास से हाँ याद आया कि एक ऑडिटोरियम है जहां पे क्षमता रखी गई है 250 लोगों की, पर आप जब भी वहां जाएंगे तो आपको प्रायः 4 प्राणी मिलते हैं। एक जो कि गेस्ट स्पीकर, दूसरा जो जबरदस्ती की स्क्वाड ड्यूटी में फंसता है, तीसरा और सबसे होनहार ओटी अरुण डी, और चौथा फिर से हमारा श्यामलाल। तो आइए आपको दर्शती ऑडिटोरियम ले चलते हैं और देखते हैं कि क्लास में क्या हो रहा है। चलो भाई, चलो यार। हाँ, अटेंडेंस लगा के आते हैं, आज का काम हो जाएगा अपना। चलो रात में नींद भी नहीं ली थी। हाँ यार, हाँ लगाते हैं। लगाओ। हाँ लगाए, लगाओ यार, तुम भी। चलते हैं। लग गई भाई अटेंडेंस। आज की क्लास करते हैं। चलो आज का। अरे सर किधर जा रहा है सर? किसे रोक रहे? सर किधर जा रहा है सर? सर अटेंड करिए ना सर। अटेंडेंस हो गई, इसको रोको। सर बैठिए ना सर। तुम्हारा थाना कौन सा लगता है? सर ये क्या बोल रहे हैं सर? कौन से थाना क्षेत्र में रहते हो? सर क्या बोल रहे हैं सर? तो रोज तुम्हारी हाजिरी वहीं लगाते हैं। अटेंड करिए ना सर प्लीज। सर मेरा नौकरी चला जाएगा सर, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा 2 बच्चा है सर, मेरा नौकरी चला जाएगा सर, नौकरी जाएगा सर। गजब बेइज्जती यार, अभी मजा चखाता हूँ इनको। हेलो डीवीडी सर। हाँ श्यामलाल बोलो। सर सब खत्म हो गया सर, एफसी डूबने वाला है सर, एफसी का शीघ्र ही पतन होने वाला है सर, सब खत्म हो गया सर। क्या हुआ? सर कोई नहीं है सर, कोई नहीं आता सर। अरुण भी चला गया क्या क्लास से आज? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है सर, वो तो आते ना सर। सर कुछ करिए सर। श्यामलाल, ओटियों को देखते हैं। अब पानी छत से ऊपर चला गया है। सीढ़ी समझा क्या? डीवीडी है अपन। क्रोधित डीवीडी सर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को वापस लाने के लिए गोदावरी हॉस्टल पर आक्रमण नहीं रेड का प्लान करते हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं अगला दृश्य, रेड इन गोदावरी हॉस्टल। सर बहुत बदमाश है सर, नहीं खोलते सर। बहुत बदतमीज है सर, नहीं खोलेंगे। सर खोलना पड़ेगा सर। तोड़ देंगे, दरवाजा नहीं खोला तो एक बार में। खोलो। ओए फैकल्टी है, वॉशरूम। नहीं मानेंगे सर ये। श्यामलाल, अपने पास जो चाबी है उससे दरवाजा खोल लो। अबे कौन है? अंदर कोई नहीं है। चेपंडे, ओटी कौन? और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, बाहुबली के आक्रमण के बाद डीवीडी सर रण छोड़कर भाग गए और इससे ओटियों में एक नया जोश का संचार हुआ और सारे के सारी ओटी अपने जीवन में अब जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं बची थी उसको पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। और ये जो कहा गया है कि आदि अनादि काल से जब भी जल
एवं वातानुकूलन जैसी मूलभूत विपदा आती है, तब महापुरुषों का अवतरण होता है। जैसे कि त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में ब्रह्मा। देसी जे गीता ट्रैप दी बीटा सिर कट कट दे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे। ओहो भाई यार बहुत गड़बड़ समस्या। ब्राउन मुंडे। हाँ यही बताओ क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? भाई एसी बंद है, जब से आया तब से एसी बंद है, पानी नहीं आ रहा है, अब तो हद हो गई यार। ये तो और मैंने तो बालकनी में कपड़े सुखाए, जला दिए किसी ने। अभी लिखता हूँ यार, मेरी पिंक वाली नहीं मिल रही। बाल्टी अभी लिखता हूँ, ये बाल्टियों का नया यार मैसेज कर दिया मैंने। मैसेज से नहीं होगा यार, बहुत हो गया, जाना पड़ेगा। बात तो सही, डीजी सर के पास चलते हैं। हमें चाहिए इनकलाब। डीजी सर, हमने इतने मैसेज किए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस मिला तारीख पे तारीख, और नहीं मिला तो इंसाफ करेंगे सब करेंगे। दोस्तारो सब डीजी गाने। अरे एसी वाले को बुलाया, रिपेयर करेगा वो। वी वांट जस्टिस, ग्रुप पे मैसेज डालो, ग्रुप पे मैसेज डालो, करते रहूंगा, ग्रुप पे मैसेज डालो, पूरे जीवन मैसेज करते रहूंगा, मैसेज से होगा। डीजे गारू के टाल मटोल रवैये से परेशान होकर सारे पीड़ित ओटी स्वयं को और भी पीड़ित समझने लगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर ये आस थी, ये उम्मीद थी कि एमसीआर एचआरडी जाने से उनकी शादियां हो जाएंगी। और ये शादियां लबासना ऐसी शादी नहीं होती, उनको किसी 45 साल के व्यक्ति से दोबारा शादी करनी पड़ती। तो इसी को चरितार्थ करने के लिए हमारे बीच 2 ओटी आ रहे हैं जो कि सालसा क्लासेस ईसीएम की वहां पे जाके अपनी जीवन संगनी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अरे विभोर, हाँ भाई, पता है तुझे क्या एमसीआर में ना ईसीएम क्लासेस भी होती हैं। ईसीएम? हाँ, एक्स्ट्रा को करिकुलर मॉड्यूल्स। इसमें क्या है भाई? अरे इसमें कीबोर्ड है और जुम्बा है, जुम्बा और सालसा भी है। सालसा? ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, de repente. ये कैसी इमेजिनेशन थी? हाँ यार, में ये मिलेगा? हाँ, चलो तैयार हो जाओ, क्लास चलते। अबे तू, अरे तू भी, अरे राणा साहब आप भी। अबे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम सारे लड़के ही पहुंच गए। हम ही करते हैं डांस। चलो फिर हम ही कर ले। दिन बीत जाती है सुहाने यादें बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर, पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब होते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। हम अलग अलग सर्विसेज से आए थे, अलग अलग काडर में थे। एमसीआर में आने के बाद हमारे बस एक ही मकसद था कि हम सब में भाईचारा हो, कमराडरी हो, दोस्ती हो। हमें यह तो नहीं पता कि यहां से जाने के बाद हमारा सर्विस कंफर्मेशन होगा या नहीं होगा, पर हम ये जरूर जानते हैं कि यदि आप गोदावरी हॉस्टल में आके देखें तो वहां हम सब एक ही धारा की तरह बहते हैं, और वो धारा सारी सर्विसेज, सारे काडर को छोड़ते हुए एक ही सर्विस और एक ही काडर की बात करता है, वो है एमसीएचआरडी। तो एक छोटा सा एक शेर है जो स्वयं रचित है, जो खुद से लिखा गया है, उसको सुनने की कृपा करें कि हर साल एक रास्ता ऐसा आता, एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। जब सूरज को एक लंबा ग्रहण लगता है, चांद रूठकर कहीं चला जाएगा, जंगल से लौटकर आएंगे वो सारे जुगनू और अंधेरे से डरने वालों को रोशन कर देंगे। वो जुगनू हम, आप
और हमारे सारे साथी हैं जो कि आने वाले हर वक्त में MCHRD और तमाम दुनिया को रोशन करेंगे। तो आइए, ये हमारे नाट्य का आखिरी पल है, हम सब इस दोस्ती को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसमें हमें ज्वाइन कीजिए और खड़े होकर हमारे साथ जरूर गाइए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं सारे पात्र का परिचय करा दूं। यार ये तो श्यामलाल ही बताएगा ओटी कोड के बाद। हमारे प्ले के डायरेक्टर जो कि आधे फ्रेंच हैं, कृष्ण कुमार। ये जगदीश हैं, उसके साथ जो खड़े हैं वो गौरव राजपुरोहित हैं, जिन्होंने श्यामलाल का बहुत ही सुंदर किरदार निभाया है। शुभांशु जैन है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी है और पूरा साउंड नोन देखा है। पुष्कर शर्मा ब्राउन मुन्ने है, और ये मन्नी वो बुली है जो कि दारू कहानी में बैठा रहता है, और ये विभोर है जिनको शेडेड बॉडी बनानी है, डिफेंस अकाउंट के बहुत ही अच्छे अधिकारी है। बगल में सर्वेश है जो पीटी करने में इनको काफी समस्या आती है क्योंकि सीधे उठ के आए थे ये, और ये फॉरेस्ट सर्विस वाले हैं, इनको बकरी नहीं मिल रही थी। और ये शिवांशु राजपूत है, ये भी उन्हीं बुली ग्रुप में थे जो कि दारू कहानी में बैठा था। ये पुलिस वाले हैं, इनकी शादी नहीं हो रही, समस्या है थोड़ी। और ये राणा सर है। सर गुस्ताखी माफ, आप जहां भी बैठे। ये डीजे गारू है। ये पात्र पूरी तरह से काल्पनिक था और हमें फर्क पड़ता है। ये निकेतन भाई है। ये ब्रिजे, ये सबसे बड़े KTP OT है जिनको ये एक्चुअली सच्ची घटना है, वाइस प्रेसिडेंट का प्रैंक हमने किया था इनके साथ और ये आए भी थे FC सेक्रेटरी। और ये DVD सर है, ये भी, इनका भी कोई वास्तविक पात्र से कोई लेना देना नहीं है। ये दारू कहानी का संचालन करते हैं और ये पोस्टल सर्विस में है जो थूक बांटते बांटते, फराज इनका नाम है, थूक से पोस्ट करते करते थक चुके हैं। धन्यवाद। मैं नरेटर हारिस। And in the end we have Harris doing narration, and it was very difficult. Thanks to DG sir, he had put together all of us, because otherwise it would have been impossible to pull this through. Thank you so much, sir.